everyone. Here I am going to discuss 10 questions for the compartmental students. Those will get easily 10 marks. So first question is decimal place after which the decimal expansion will terminate. Means if you bring this into decimal, then after which or after how many digits it will stop. What is saying here? Suppose 2.351, it is finished. Now point is here, how many digit before? It is 1, 2 and 3 digit before. So without dividing this, we can say that how many digits after it will stop. Just you have to do what? That's this downside, that is the denominator 6 to 5, we have to factorize. 6 to 5, if we factorize it by 5, 1, 2 and 5, by 5 again, then it is 25, then 5 again, then it is 5. Now how many 5s you got? You got 4 5s. That means 1 4 5 8 8. Downside what? 5 to the power 4. Now see, another things you have to remember in your mind, that whether this upside one and downside one, that is numerator and denominators, are in least form or not. That means can you cut or not? So it is not cut, that means I cannot bring into least form. So this power will say you that after how many digits it will stop after decimal points. So answer will be 4. That means whatever answer will come, that like this, suppose 3.5289, how many digits here? After point 4 digits. That means after 4 digits this decimal expansions will stop. So this power tells you the answer, power, how much is the power for 5. Similarly come here again, just look here, this 23 is a prime number, ये prime number है. So this prime number cannot be cut by any number except itself and 0, 1. Then prime, who is prime number? Which is divisible by itself and 1. So 23 cannot cut by others number. Now downside you see denominator 2 to the power 3 and 5 to the power 2. You go with the highest power. Who has highest power? 2 to the power 3. So this answer will be 3. That means any answer come when you divide by this, but it must stop 0.539 like this. 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा. तो जो भी आंसर आए मगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आके वो ख़त्म हो जाएगा. वाई हेयर यू सी हाईएस्ट पावर इज 3. किसका हाईएस्ट पावर? 2 एंड 5, इन दोनों का अगर पावर ख्याल करोगे, notice करोगे, then you will see that this 2 to the power 3 has the highest power. So this is gone. Next come here, I took in a different one. I told in this case also, in this case also, that can you cut or not. तुम क्या कट कर सकते हो कि नहीं, एक बार देख लेते हैं. Here we have 4 into 4 and downside we have 2 to the power 2, means it is 4 into 5 cube. See, yes, I can cut, so it is gone. ये दोनों cut हो गए, gone. Now this is what 4 and this is what 5 cube. So मुझे ये 2 का consider करना नहीं पड़ा. That means I can say from this 5 only. 5 highest power is what? 3. So your answer is 3 digits, मतलब 3 डिजिट्स के बाद वो एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगा. क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डेसिमल प्लेस आफ्टर विच डेसिमल एक्सपेंशंस विल टर्मिनेट, ख़त्म हो जाएगा. सो ये 3 कैसे बता सकते हैं? यू हैव टू सी द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5. उससे पहले थोड़ा सा देख लेना कट कर सकते हैं कि नहीं. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
sum of zeros and products of zeros cubic equation. sum of the zeros क्या बोल रहे कि sum of the zeros and product of the zeros क्या होगा. अब ये zeros क्या है. सपोज दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशंस. क्यूबिक इक्वेशंस का डिग्री कितना होता है. डिग्री इज 3. क्यूबिक इक्वेशंस का डिग्री कितना होता है. 3 होता है. तो इसका जीरोस यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे देन एक्स का वैल्यू 3 आएगा और वो हम ऐसे सिंबल से बताते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा. ओके. नाउ इफ आई कंसीडर द कोएफिशिएंट्स. यहाँ से अगर कोएफिशिएंट्स ले ले तो क्या होगा. ए का कोएफिशिएंट्स क्या होगा. मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट्स क्या होगा. ए इक्वल टू 3. मतलब ये जो एक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट 3 एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज बी इक्वल टू -5 एंड एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज सी इक्वल टू -11 एंड द लास्ट टर्म जो है वो है डी इक्वल टू -3. सो दीज आर द कोएफिशिएंट्स एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. वो एक नंबर होता है. नाउ व्हाट इज आस्किंग हियर sum of zeros. You please kindly by heart this 3 formula. Alpha plus beta plus gamma, it is sum of zeros. This is the sum of product of the zeros. sum of product of the zeros मतलब sum भी और product भी इन दोनों एक साथ बैठा हुआ है. मतलब ये product है, ये भी product है, ये भी product है और product का sum और ये लास्ट वाला ओनली प्रोडक्ट. तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तीनों का प्रोडक्ट. नाउ गो फॉर इट कि मुझे क्या चाहिए. सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ये होगा क्या -b/a. आपको क्या करना है. ओनली जस्ट पुट द वैल्यू. ये माइनस फार्मूला का माइनस है तो उसे रहने दो. एंड b इटसेल्फ हैज़ अ माइनस दैट इज -5 और a नीचे क्या है 3. सो ये हो जाएगा. इस माइनस माइनस ने इसको प्लस कर दिया दैट इज 5/3. सो दिस इज द सम ऑफ द जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा. वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. उसका फॉर्मूला क्या है -d/a. तो वन फॉर्मूला माइनस इज देयर, माइनस रखा और d का खुद का एक माइनस है -3 एंड देन a का वैल्यू कितना है 3. सो this is very easy that it will become minus minus is +3 and 3 cut 1. So this is sum of the zeros and product of the zeros of cubic polynomials. I can say cubic because it is 3 is there. Now same way I can do this one and I am keeping for you this one. Same way a equal to 1 because this x cube has 1 as a coefficient. x square का है b equal to 4, c equal to 1 and d equal to -6. सेम वे करना है आपको. ये sum of the zeros इसका वैल्यू and product of the zeros इसका वैल्यू. now I'm going for the next 2 क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन गया हम लोगों का. अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आते हैं. सी ये क्या है. यूज ऑफ लिख के रखा b² - 4c. ये है क्या चीज़. ये किसके लिए होता है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कब होगा व्हेन a नॉट इज इक्वल टू 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये a का 0 नहीं होना चाहिए. मतलब ये एक्स स्क्वायर्स वाला जो टर्म्स है वो हटना नहीं चाहिए बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो डिग्री है वो है 2. नाउ कम हेयर. इट इज सेड व्हाट कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है जो हैज़ ए इक्वल एंड रियल रूट्स, जिसका इक्वल एंड रियल रूट्स है. अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वल एंड रियल रूट्स होता है तो आपको क्या करना होता है. सी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो है b² - 4ac.
जब भी इक्वल एंड रियल रूट्स होता है, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ज़ीरो, ये है फॉर्मूला, मस्ट बी ज़ीरो, इसे ज़ीरो होना है। तो कौन है ये बी ए सी? तो ये है ए, यानी ए इज इक्वल टू हाउ मच 2, बी इज इक्वल टू हाउ मच 8 एंड सी इज इक्वल टू हाउ मच यार माइनस के का क्यूब। चलो हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। सिंस दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेना होगा। यानी बी स्क्वायर कौन है, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन है, ए है 2 इंटू सी कौन है, ये रहा सी, सी है माइनस के का क्यूब, ये सी गया, इज इक्वल टू क्या होना है 0। ओके, वेरी गुड। नाउ 8 का स्क्वायर होता है 64, दिस माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और मेरे सामने आ गया 8 के का क्यूब इज इक्वल टू 0, 8 के का क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ मैं इसको रखता हूँ, 8 के का क्यूब इस साइड में है, मैं 64 को उस तरफ लेके जाता हूँ, 64, मगर एक चीज़ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, क्यों, 64 इस साइड में था तो ये माइनस था, उस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ इस साइड में प्लस था, उस साइड में माइनस हो जाएगा, मतलब जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है। 64 इट वाज हेयर प्लस, इट इज़ नाउ हेयर माइनस। नाउ ये जो 8 और के क्यूब है वो इनटू फॉर्म में है, के क्यूब इक्वल टू माइनस 64 बाई 8। Now if you cut this one, you will get what, 8 minus 8। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या मिला, के क्यूब इक्वल टू माइनस 80 माइनस 8, सॉरी माइनस 8। देखो ये के क्यूब है और यहाँ पर लिख सकते हैं -2 का क्यूब, कितना मज़ेदार है। तो इसमें क्या हुआ, दिस k हैज़ पावर 3 एंड दिस -2 ऑल्सो हैज़ पावर 3। तो ये -2 का क्यूब क्यों होता है, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे तो आई विल गेट दिस -8, दिस गेट कट, सो k इक्वल टू -2, सो वैल्यू फॉर k इज -2। नाउ ये क्या है, एक फार्मूला का एक यूज़ है। जैसे फार्मूला क्या है, फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा को रखते हैं और tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, यानी ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू है 1। अच्छा, इसी को अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, इसको उल्टा कर दिया तो इधर होगा -1। प्लीज़ काइंडली रिमेंबर दिस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज अगर 1 होता है तो इसको उल्टा कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 होगा। तो इसको देखते हैं, ये देखिए वैल्यू मांगा है इसका, सो 7 मैं कॉमन ले लेता हूँ एंड अंदर कौन डाल दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 7 इंटू अभी अभी दिखाया था कि इसका वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 7, वेरी इजी है। इसका भी ले लेते हैं 9 कॉमन, तो बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिया। अब इसका वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 पॉइंट कट गया, फिर से 9। बट इसका थोड़ा सा उल्टा नहीं, ये भी तो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, क्या है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा, cot क्या था, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जब cot को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, cosec, ओके
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। तो मुझे याद रखना है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इनमें से 8 कॉमन ले लेता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये रह गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे टर्म्स का वैल्यू क्या है 1, 8 इंटू 1 दैट इज़ 8। सेम वे मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसका ऑपोजिट हो गया। ये देखिए मैंने कहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 होगा। तो 9 कॉमन लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देन 9 इंटू इसका वैल्यू है -1। सो आंसर इज -9। सो वेरी इजी क्वेश्चंस, और ये मैट्रिक में आता है, तो कंपार्टमेंटल के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इसमें 1 2 ऐसे जाते हैं, इसमें -1 -2 -3 -4 ऐसा -1, ओके, 1 2 3 ऐसे जाते हैं, नीचे -1 -2 ऐसे जाते हैं, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को पुट करते हैं पहले 2 -3, 2 मतलब +2, 1 2 इधर गए, -3, 1 2 3 यहाँ है, ये है मेरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, 2 -3। कहाँ क्या है पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ये। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, ये है 1 2 3 यूनिट दूर है, ये है 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। इसका एक ट्रिकी ये है, जब भी एक्स एक्सिस से दूरी बताए तो वाई का वैल्यू मुझे लेना है। क्या कहा, एक्स एक्सिस, आस्किंग एक्स एक्सिस से दूरी किसका, दिस पॉइंट, सो यू टेक द वैल्यू ऑफ वाई, एक्स एक्सिस वाई का वैल्यू, बट ये माइनस नहीं लेना है, मुझे 3 यूनिट बोलना है, क्योंकि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। सेम वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताया, बोला कि दिस पॉइंट हाउ फार इट इज़ फ्रॉम वाई एक्सिस, ओके। तो वाई एक्सिस से जब डिस्टेंस बताते हैं तो मुझे क्या लेना है, मुझे सिर्फ एक्स का वैल्यू लेना है, एक्स का वैल्यू। जैसे ये है 9 और 3, तो एक्स का वैल्यू क्या है 9, सो वाई एक्सिस की दूरी बताएं तो हम क्या लेंगे 9 यूनिट, वेरी सिंपल। क्या आया 9 यूनिट। जब किसी पॉइंट का y से दूरी बताए तो x का वैल्यू ले लेना है, वो भी पॉजिटिव, एंड जब किसी पॉइंट का दूरी मांगे x एक्सिस से तो मुझे y का वैल्यू लेना है, बट पॉजिटिव वैल्यू लेना है, -3 नहीं लिखना था, लिखना है क्या 3 यूनिट, ओके। नाउ कम टू दिस, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो क्लास लोअर क्लासेस का ही है, रिविजन्स में है। मैं अगर पीछे की तरफ जाता हूँ तो मेरा माइनस होगा, याद रखिएगा काइंडली, एंड इफ़ आई गो फ्रंट साइड तो ये +1 होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, ये यूजुअल फॉर्म है, इसे बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। लेना किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये पॉइंट को मुझे लेके जाना है आफ्टर 1 डिजिट, हाँ, ये 1 डिजिट बाद लेके जाना है, इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब जो भी नंबर्स है, ये तो 0 0 है, 0 को छोड़ के जो डिजिट्स हैं सिर्फ उसके एक घर पीछे लेके जाना है, पीछे, जस्ट सामने से एक घर पीछे। तो एक्चुअली मैं कितना पीछे जा रहा हूँ वो देखना होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 घर पीछे जा रहा हूँ, यानी 6.4 लिखने के बाद मैं जब एक 10 लूँगा, इसमें दूंगा मैं माइनस, क्यों, पीछे माइनस, सामने प्लस, तो ये हो जाएगा -6। अच्छा, पीछे सामने वाला, अगेन आई वांट टू क्लियर हेयर,
जैसे 3 5 2 8 9 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, तो मुझे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो पॉइंट कहाँ पर यहाँ पर है, देयर इज़ नो पॉइंट, येस देयर इज़ पॉइंट, ये यहाँ है पॉइंट लास्ट में, द पॉइंट विल कम यहाँ, यहाँ आएगा पॉइंट, एक घर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के सामने से एक घर पीछे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। देखते हैं, तो लिखेंगे 3.529 लिखा, कितना घर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक मल्टीप्लाई 10 देने के बाद ये जो सामने आया तो प्लस, किसी भी नंबर का कुछ साइन नहीं देते हैं, मतलब प्लस, तो कितना घर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये जो 9 लिखा मैंने यहाँ पर प्लस है। सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है प्रोबेबिलिटी से। कोई भी इवेंट्स का होना या ना होना प्लस करे तो 1 आता है। जैसे पी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का होना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नहीं होना, तो इसका वैल्यू आता है 1। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पी इवेंट का और पी नॉट इवेंट का प्लस करके आता है 1। सो मेरे पास ये पी इवेंट का है, पी नॉट इवेंट का मुझे फाइंड आउट करना है, पी नॉट इवेंट का। तो फॉर्मूला क्या है, पी इवेंट प्लस पी नॉट इवेंट, इन दोनों का करेंगे तो मुझे 1 मिलना चाहिए। इसमें से किसी एक का वैल्यू मेरे पास है, ये है, दैट इज़ 0.7 प्लस पी नॉट इवेंट इक्वल टू 1। अब क्या करना है, जस्ट लेके जाना है उस तरफ, माइनस करना है, पी नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.7, तो माइनस कीजिए 1.0 0.7 माइनस, इट इज़ 10 माइनस 7 इज़ 3, ये हो गया आपका, तो 1 चला गया, 0.3 इज़ योर आंसर। ओके, नाउ इसमें आते हैं, मीन दिया गया है, मीडियन दिया गया है, और मुझे मूड फाइंड आउट करना है। मीन, मीडियन, मूड, और तीनों का रिलेशन क्या होता है देखते हैं। 3 मीडियन, प्लीज काइंडली नोट डाउन दिस फॉर्मूला, इक्वल टू 2 मीन प्लस मूड, ये फॉर्मूला है। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन 1 मूड, ये फॉर्मूला है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला को लाते हैं, 3 मीडियन, वेरी सिंपल, इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मूड, हो गया। अच्छा, नाउ 3 लिखा, इनटू मीडियन का वैल्यू मेरे पास है 15, इक्वल टू 2 लिखा, मीन का वैल्यू मेरे पास है 14 प्लस मूड। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट, इसको इंटू करेंगे तो 45, इसको इंटू करेंगे तो 28 प्लस मूड। अब क्या, अब जिस सिर्फ साइड चेंज, 45 माइनस 28 इक्वल टू मूड, बस आ गया मूड। 15 माइनस 8 इज 7, here it is 3 1, so this is our mood। मेरा मूड निकल गया कितना, 17। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को तुम्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट। अरे मिड पॉइंट ऑफ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, किसी भी मिड पॉइंट को ऐसे निकाला जाता है, जैसे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। प्लीज़ नोट डाउन, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो कैसे निकले मिड पॉइंट, जस्ट सामने वाला ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। तो करना क्या है, सामने वाला प्लस सामने वाला, दैट इज x1 प्लस x2/2। तो लिखते हैं 2 प्लस 4/2, पीछे वाला
that is y1 plus y2 by 2. Now ये 2 plus 4 is 6 divided by 2, काट दीजिए, that is 3, and here plus minus is 0 हो जाएगा, 5 minus 5 is 0 divided by 2 is 0. तो मिड पॉइंट क्या निकल गया, वो ब्रैकेट डाल के लिखना है 3, 0. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स. मतलब ये दोनों पॉइंट जोड़ के जो लाइन बनेगा, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा 3, 0. नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स. इन द बिगिनिंग आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मूला. डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी नॉट डिटर्मिनेंट, आई फॉरगॉट द वर्ड, डिस्क्रिमिनेंट. वो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये है डिस्क्रिमिनेंट. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac. यही आपको बताया था कि हाउ काइंड ऑफ रूट्स यू आर गोइंग टू हैव. ओके, यहाँ पर a कौन है, एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो है a 3, एंड x के आगे जो है वो है b, दैट इज -2, एंड लास्ट वाला जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, दैट इज c इक्वल टू 1/3. नाउ डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. चलिए, ये बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच 3 इंटू c इज हाउ मच 1/3. ये बहुत मैच करके दिया गया है. इसको मैं काट देता हूँ 1 1, और ये देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि ये इवन नंबर है पावर. सो 4 माइनस इसका 4 इंटू 1 इज 4. वेरी इंटरेस्टिंगली आई गॉट 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड इट विल हेल्प टू गेट 10 मार्क्स. मैंने इसको 10 मार्क्स के लिए बनाया, और नेक्स्ट वीडियो में अगेन आई विल ब्रिंग शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स. थैंक यू.